Hello students, today I Priya Rohira welcome you all in my next lecture that is based on chapter 1 Python Pandas. In my previous lecture I had explained you how to access rows and columns, and in this series I will explain you how to access a single cell and how can we add or modify any row or column. So just let's start. How to access a single cell? There are various methods to access a single cell. First, we can access a single cell by using the column name along with row label in the square bracket. This is my data frame. Suppose मुझे राहुल के हिंदी के मार्क्स एक्सेस करने हैं तो मुझे हिंदी कॉलम और राहुल को स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा. Then I can access my output 33. Next method, using iloc. So df4.iloc, and here you will mention the row label and column label. Row label that means आपका row index कौन सा है 0 1 2 second row, and मेरा column label कौन सा है 0 1 that means first column. So this is my value 33. Next method, using at statement. Here the same you will mention the row label and column label. एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा आप रो लेबल ही पहले स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद कॉलम लेबल. अगर आपने ये सीरीज अपोजिट कर दी then it will create an error. So the same df4 dot add Rahul and Hindi. You have seen that Rahul is my row label and Hindi is my column name. आपका जो भी कॉलम का नेम है और जो भी रो का आपका लेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. Fourth method is using i8. In this i8 you will use row index and col index. जहाँ पे at में आपने labels यूज किए थे, label means आपने क्या नेम दिए हैं, और इंडेक्स पोजीशन का मतलब होता है कि वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है. जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है 2 1, दैट मीन्स मेरी रो 0 1 2 सेकेंड नंबर की रो है और कॉलम 0 1 फर्स्ट नंबर का कॉलम है. देन हियर यू कैन सी दैट कि आपने एट में रो लेबल्स यूज किए थे और आई एट में आपने रो इंडेक्सेस यूज किए थे, और आई लॉक में भी आपने रो इंडेक्सेस यूज कर रखे हैं. तो आपने नोटिस किया कि आई लॉक और आई एट सिमिलर्स विथ ईच अदर, ओनली उनके स्टेटमेंट्स के नेम डिफरेंट है बट एक्सेस करने का तरीका सेम है. So students, I had explained you these 4 methods and how can we access a single cell from a data frame. My next topic is how to add or modify a column. So here you will keep these two things in your mind. Will modify it if the column already exists. अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी कॉलम में और वो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो उस कॉलम की वैल्यूज को आपकी असाइंड वैल्यूज से रिप्लेस कर देगा. और अगर आप वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं है देन इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम. The syntax is, here you will use the data frame object, then on which column you want to add or modify. Suppose this is my data frame and my first example is df4, and in braces you had mentioned science equal 25. So you can see that science column is already here. Science column already आपके data frame में available है. तो in the output it had modified the science column with this value 25. And in my second example I had used SST. So you can see that SST column is not present in my data frame. So in my output it has created a new column with the value 34. If we specify single value, all rows will show the same value. यहाँ पे एक आपने बात नोटिस करी होगी कि यहाँ पे भले ही मेरे मार्क्स अलग अलग थे पर जब मैंने यहाँ पे 25 वैल्यू दी तो उसने सारी रोज में 25 ही असाइन कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई करी है. बट आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू यूज सेपरेट वैल्यू फॉर ईच रो. सो यू कैन सी दिस. If we specify values in form of list, all rows will show the specified value. Make sure that number of values should be equivalent to number of rows given in the data frame. क्या मतलब है इसका? आप जो भी कॉलम नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन सा कॉलम ऐड करना है या मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. As you can see that I am having 1 2 3, मेरे पास में 3 रोज हैं.
तो जब मैं वैल्यूज स्पेसिफाई करूंगी तो वो भी मेरे पास में 3 होनी चाहिए. लाइक आई हैड यूज साइंस कॉलम 25, 27, 14. यहाँ पे मेरे पास 3 रो है और वैल्यूज में मैंने 3 स्पेसिफाई कर रखी है. So in the output you can see that 25, 27 and 14. So old value has been modified with my new value. अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू कम या ज़्यादा करती तो आपका आउटपुट नहीं आता. It will shows an error. Same thing I had given an SST. So I had specified 3 columns. So my new column has been created with the values 34, 45 and 67. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो सारी रोज में आपको सेम वैल्यू नजर आएगी. बट अगर आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो हर रो की वैल्यू अलग अलग होगी जो कि आपने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में स्पेसिफाई कर रखी है. माय नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ऐड और मॉडिफाई मल्टीपल कॉलम्स. आपको अगर मल्टीपल कॉलम्स में मॉडिफिकेशन करना है या एडिंग करना है देन आप कैसे यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं कि यू विल स्पेसिफाई द मल्टीपल कॉलम नेम्स. चाहे तो आप सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई करिए या लिस्ट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करिए. दिस इज माई डेटा फ्रेम एंड इफ आई हैड यूज हिंदी एंड साइंस, DF4 डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिस्ट ऑफ कॉलम्स को बताने के लिए यूज किया जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि आपने 25 दिया है, दोनों कॉलम की सारी इंडेक्सेस पे जो वैल्यू आई वो 25 आ गई. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ कि 25 एंड 45 तो आप आउटपुट में देखेंगे जो हिंदी है ये 25 हिंदी में असाइन हो गया और ये 45 साइंस में असाइन हो गया. हालांकि दिस इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस बट आई हैड एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट एक्स्ट्रा. सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू देन विच मेथड यू आर यूजिंग टू मॉडिफाई योर कॉलम्स. My next topic is other ways for adding or modifying a column. इनके अलावा भी हमारे पास में कुछ और तरीके हैं जैसे using at statement, using log, using assign. This is my data frame and I had used at statement. So df4.at and this colon comma, this is must, without it will create an error. So here you will specify your column name in which you want to show your modification or you want to insert a new column, and here you will specify your list of values 25, 27, 14. So here you can see that one new column with science name has been added with the new values. My next topic is using log statement. This is my data frame and df4.log. Only I had used LOC statement in place of it. The rest of the things are quite same. So in this output you can see the same. Next topic is using assign function for modification or adding a column. So here you can see that df4.assign and science, that I want to add science and my values are 25, 27, 14. So this is my data frame and you can see that new column has been added. Now assign is a function where at and log were statements that are not function. So here you will notice that I had given a note in assign statement we need to show assignment. means आपको यहाँ पे df4 equal df4 डॉट असाइन आपको ये शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपको df4 में नहीं शो करेगा. जैसे कि एट और लॉग पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी बट यहाँ पे आप ये असाइनमेंट शो करेंगे. एंड कॉलम नेम्स विल नॉट कम इन कोट. आपने जो यहाँ पे साइंस लिखा है इसको आप कोट्स में नहीं लिखेंगे, इसको आप विदाउट कोट्स लिखेंगे, जबकि हमने जो एट और लॉग में हम कॉलम नेम को कोट्स में मेंशन कर रहे थे. तो दिस इज अ स्मॉल थिंग्स, सो जस्ट कीप this thing in your mind while you are using assign function to add or modify your columns. My next topic is how to add or modifying a row. अभी तक मैंने आपको explain किया columns के लिए, but अगर हमें same rows को भी add या modify करना है तो the same you will keep this thing in your mind. Assigning a value to row can be considered as will modify it if the row already exist. अगर row already exist है तो वो उस पर modification कर देगा और अगर वो already exist नहीं है तो वो उस name की new row को create कर देगा. So at and log attribute will be used to add or modify a row.
रो मॉडिफिकेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक्ट या लॉक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. So see the example df4.add. Here you can see that comma colon I had mentioned at the end, while in the column case it is mentioned in the beginning. And the same thing, if you will specify a single value 20, then all columns will show the same value. और अगर आप list of values डालते हैं तो वो हर कॉलम की अलग अलग वैल्यू शो करेगा. जैसे ये मेरी डेटा फ्रेम है, अगर मेरे फर्स्ट केस में मैंने दिया इक्वल 20, तो आपने नोटिस किया प्रिया वाली रो की इंग्लिश और हिंदी के दोनों वैल्यूज 20 हैं, और मेरे सेकंड आउटपुट में 24 34 है. मेरा रो प्रिया की 24 34. सो अगर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं तो वो आपकी अकॉर्डिंग टू द कॉलम आपकी अलग अलग वैल्यूज शो करेगा. सो इट्स योर चॉइस व्हाट मेथड यू वांट टू यूज टू add or modify row in the data frame. List of values should be equal to the number of columns, otherwise error will come. इसके कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 2 कॉलम है तो यहाँ पे वैल्यूज भी आपके पास में 2 होनी चाहिए. अगर ये कम या ज़्यादा हुई देन इट विल क्रिएट एन एरर. अगर हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज बता रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और यही मैंने आपको कॉलम मॉडिफिकेशन के टाइम पे भी बताया था कि आपके नंबर ऑफ रोज उस केस में इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ आपके लिस्ट वैल्यूज के. माय नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल. सिंगल सेल को मॉडिफाई करने के लिए यू विल यूज डीएफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आपके डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, कॉलम नेम, रो लेबल, और जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है. ये सेम वही चलेगा जो मैंने आपको सिंगल सेल एक्सेस करना बताया था, बस अंतर यही है कि अब आप उसी मेथड में यहाँ पे एक नई वैल्यू असाइन कर देंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एक्सेस करते हैं सिंगल सेल को, तो मैंने आपको बताया था df4.hindi इज माई कॉलम नेम एंड राहुल इज माई रो. और जैसे मैंने इक्वल 40 किया तो राहुल के मार्क्स अब 40 शो हो जाएंगे, पहले चाहे जो भी हो. देखिए दिस इज माई डेटा फ्रेम, और जैसे ही मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया 40, तो 33 के प्लेस में आपने मॉडिफाई कर दी वैल्यू 40. और यही काम आप iLog से भी कर सकते हैं. सेम ये मेथड ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जैसे ही आपने इक्वल 40 किया तो इसने यहाँ पे 40 शो किया. यही वर्क आप एट मेथड से भी कर सकते हैं. इस केस में आपको रो लेबल और कॉलम लेबल बताना पड़ेगा. रो लेबल राहुल, कॉलम का नाम है हिंदी, और जो भी आपको वैल्यू डालनी है. और यही वर्क आप आई एट से भी कर सकते हैं. और आपको पता है कि आई एट के केस में आप रो इंडेक्स यूज़ करते हैं, कॉलम इंडेक्स यूज़ करते हैं, लेबल्स यूज़ नहीं करते. तो वही आपका जो रो इंडेक्स है वो है 2, कॉलम इंडेक्स है 1, और जो भी वैल्यू आपको देनी हो. ये चारों मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर एक्सप्लेन किए थे कि हम एक सिंगल सेल को कैसे एक्सेस करते हैं. अगर आप ये असाइनमेंट वैल्यू नहीं शो करेंगे तो वो आपको उसकी वैल्यू दिखाएगा, दैट इज 33. और जैसे ही आप इस पर वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, दैट इज 40, जो आप यहाँ पे डेटा फ्रेम में देख सकते हैं. सो इन अ वेरी सिंपल वे आई हैड एक्सप्लेन यू all the things. These things are not very much clearly given in the book, but in my lecture I had given you the best way to access rows, column, how to add, modify the rows, column, how to adding a single cell, how to modifying a single cell. If you will see this, you will feel a great help while you're learning. Still students, if you have any problem regarding this lecture or any problem in IB subject, so you can mention your doubts in comment section. Thank you students.